Hi friends, welcome to Technical Education classes and today we will discuss about computer organization and architecture। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से बना हुआ है और वो किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में काम करता है, इसे हम आज के इस सेशन में स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। देन लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। Computer architecture. Those attributes of a system visible to programmer is called computer architecture. या इसे इस तरह से कह सकते हैं, those attributes of a system that have a direct impact on the logical execution of a program is called computer architecture. Example of architecture attributes are: number 1, the instruction set. Number 2, the number of bits used to represent various data type. Number 3, input out mechanism. And number 4, memory addressing techniques which are used in computer architecture. Instruction set that is visible for programmer, जिसमें किसी प्रोग्राम को किस तरह से ऑपरेट होना है, किस तरह से वो वर्क करेगा, वो सारे इंस्ट्रक्शन इस सेट में प्रोग्रामर द्वारा लिखे होते हैं। इनपुट आउटपुट का जो मैकेनिज़्म रहेगा वो इसमें इंक्लूड रहेगा कि इनपुट और आउटपुट हमारा किस तरह से रहेगा। इसमें मेमोरी एड्रेसिंग की कौन सी टेक्निक्स हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, इसे भी इसमें स्टडी किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, द ऑपरेशनल यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन that realize the architectural specifications is called computer organization. Organizational attributes include those hardware details transparent to the programmer. Example: number 1, control signals. Second, interfaces between computer and peripherals. Number 3, the memory technology being used in computer organization system. So, for example, the fact that a multiply instruction is available is a computer architecture issue, and how that multiply is implemented is a computer organization issue, and it will be implemented by a special multiply unit or by a mechanism that makes repeated use of the add unit of the system. Many computer manufacturers offer a family of computer models, all with the same architecture but with differences in organization. इनके प्राइस और परफॉर्मेंस में काफ़ी का फ़र्क होता है, जिसमें डिफरेंट मॉडल से ये तय होता है कि उसमें किस तरह का आर्किटेक्चर लगाया गया है, उसमें किस तरह के कंपोनेंट्स लगाए गए हैं और वो किस तरह से वर्क करेगा, उसकी स्पीड क्या रहेगी और वह किस तरह से परफॉर्म करेगा। हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जब भी बात करते हैं तो यह भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि कंप्यूटर का जो मॉडल जो डिज़ाइन किया जा रहा है वो इससे पहले के मॉडल के साथ वो किस तरह से कंपेटेबल इशू आएगा रहेगा, उसके साथ वो पुराने सिस्टम के साथ किस तरह से आगे बढ़ सकता है। दीज आर कॉल्ड कंपेटेबिलिटी इशू। और नियर अबाउट जो जनरेशन होते हैं कंप्यूटर के, उसमें हम इस बात को लेकर के चलते हैं कि हमारा जो पुराना सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है और नया आर्किटेक्चर जो है, उन दोनों में इस तरह का कॉम्बिनेशन रखा जाए कि पुराने सिस्टम को उसका जो रिसेंट जनरेशन है उसके साथ कंपेटेबल बनाया जा सके। एग्जाम्पल: ऑल इंटेल x86 family share the same basic architecture. The IBM System 370 family share the same basic architecture. This gives code compatibility at least backwards. Organization differs between different versions.
Now we will study about structure and function of a system. कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसमें मिलियंस ऑफ एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, जिससे यह सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हम जब इसकी डिज़ाइन को पढ़ते हैं तो इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। What is structure? Structure is the way in which components relate to each other. And what about function? Function is the operation of individual components as part of the structure. Both the structure and functioning of a computer are very important to understand the architecture and working of the system. Function. All computers have these four basic functions that a computer can perform. First one, data processing. Second, data storage. Number 3, data movement. And number 4, control. First one is data processing. What is it? Computer must be able to process data which may be take a wide variety of forms and the range of processing. Number 2, storage. Computer stores data either temporary or permanent. Third is data movement. Computer must be able to move data between itself and the outside world. What about control? There must be a control of the above three functions so that it works properly. By using this functional view of computer, we can understand these basic functions of a computer. इस व्यू में यह दिखाया गया है कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है। इस ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में हमारे पास एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन है। सोर्स के थ्रू कोई भी डेटा हमारे डेटा मूवमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू होते हुए कंट्रोल मैकेनिज़्म में जाता है। इसके बाद ये डेटा किस तरह से प्रोसेस होगा या फिर इसे स्टोरेज में जाना है, फिर इसे डेस्टिनेशन में जाना है, यह किस तरह से वर्क करेगा, इसे इस फिगर के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फॉर सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पर 4 ब्लॉक लिए हुए हैं: मूवमेंट, कंट्रोल, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। इन ब्लॉक्स के थ्रू डेटा किस तरह से मूव करेगा और कौन से ऑपरेशन को यह एग्जीक्यूट करेगा, इसे हम लोग इस फिगर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। डेटा मूवमेंट ऑपरेशन। इस फिगर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि डेटा का मूवमेंट किस तरह से एक सिस्टम में होता है। इस एरो मार्क के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि एक सोर्स के थ्रू डेटा मूवमेंट होते हुए यह कंट्रोल यूनिट के थ्रू स्टोरेज में जाता है और विद इन द सिस्टम रह सकता है। यहाँ से ये डेटा प्रोसेस हो करके कंट्रोल यूनिट के थ्रू डेस्टिनेशन में भी जा सकता है। इस तरह से एक कंप्यूटर किसी डेटा को मूव कर सकता है सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम के बाहर। स्टोरेज ऑपरेशन। इस पिक्चर के थ्रू हम लोग स्टोरेज ऑपरेशन को देख सकते हैं, जहाँ पर एक आउटर सोर्स के थ्रू डेटा हमारे कंट्रोल यूनिट होते हुए स्टोरेज में जा रहा है और उसी तरह से स्टोरेज से कंट्रोल यूनिट होते हुए यह डेटा एक डेस्टिनेशन पॉइंट में भी जा रहा है। इस तरह से यह बिना प्रोसेस हुए कंट्रोल मैकेनिज़्म के थ्रू हम डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्टोरेज ऑपरेशन ऑफ डेटा इन अ सिस्टम। इस पिक्चर के थ्रू हम लोग प्रोसेसिंग ऑपरेशन को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें यह दिखाया गया है कि प्रोसेसिंग फ्रॉम और टू स्टोरेज। एक स्टोरेज है जिससे डेटा कंट्रोल यूनिट होते हुए प्रोसेस होता है और फिर प्रोसेस होने के बाद स्टोरेज में स्टोर हो जाता है, जिसे इस एरो मार्क के थ्रू आसानी से समझा जा सकता है।
By using this picture, we can easily understand processing from storage to input-output devices. It is bidirectional process. यह bidirectional process है, यह दोनों वे में काम करता है, जिस तरह से इसके मूवमेंट को एरो मार्क के थ्रू दिखाया गया है। किसी सोर्स के थ्रू डेटा कंट्रोल मैकेनिज्म होते हुए प्रोसेस होता है और वह स्टोर किया जा सकता है। उसी तरह से स्टोरेज से किसी डेटा को लेकर के प्रोसेस किया जा सकता है और कंट्रोल यूनिट के थ्रू उसे डेस्टिनेशन पॉइंट पर यानी किसी आउटपुट डिवाइस में भेजा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग फ्रॉम स्टोरेज टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। Now we will study about the structure of a computer system. कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को इस फिगर के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर में हमारा स्टोरेज है और उसमें किस तरह से प्रोसेसिंग होता है। हमारा सिस्टम बायडायरेक्शनल वे में कई तरह के पेरिफेरल से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से यह सिस्टम बायडायरेक्शनल वे में कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू भी किस तरह से जुड़ा हुआ होता है और यह वर्क करता है। टॉप लेवल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज CPU, सेकेंड मेन मेमोरी, थर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड नंबर 4 system interconnection, how they are interconnected with each other and how it work together. Next is CPU structural components. These includes number 1 control unit, number 2 ALU that is arithmetic and logic unit, number 3 register and number 4 CPU interconnections that is system bus. Next unit is control unit that controls the operation of the CPU and hence the computer. The control unit contains control memory, sequencing logic and control unit register and decoders to perform control action of the system.